Okay, so before starting the next lecture or the next video, so just recall what we have studied in the previous video. Okay, so we have discussed about the clinical thermometer. First of all, we have discussed about how the winter and summer season is taking place, and in that particular season what we are wearing means we are wearing the woolen clothes in the winter season and we are wearing the cotton clothes in the summer season. And what is the reason behind it? मैंने आपको बताया था ना कि जो woolen है it is a bad conductor of heat, so it does not allow the body heat to move outside. And in summer we are wearing the cotton clothes because it helps in the ventilation of the air. Means वो क्या करता है, आपके कपड़ों में से जो हवा है वो अंदर बाहर करने का easily ventilation provide करता है आपको. So that is why we are wearing that thing. After that I have explained you one activity. मैंने आपको एक एक्टिविटी समझाई थी. Let me recall that activity once again. So we have taken 3 tubs. हम लोगों ने 3 टब लिए थे. फर्स्ट में हम लोगों ने क्या किया था, हॉट वाटर डाला था. सेकेंड में हमने कोल्ड वाटर डाला था एंड थर्ड में हम लोगों ने मिक्स्ड वाटर डाला था. देन व्हाट वी हैव डन, वी हैव केप्ट वन हैंड in the hot water and we have kept the other hand in the cold water and simultaneously हमने दोनों hands उस mixed water में रखे थे. So we have observed that कि sense of touch पे हम लोग rely नहीं कर सकते कि whether an object is hot or a cold or whether how hotter object is or how colder object is. Then how we are going to measure the temperature, उसके बाद हम लोगों ने क्लिनिकल थर्मोमीटर टेम्परेचर को मेजर करने की जो डिवाइस है उसके बारे में पढ़ा था. सो दैट इज कॉल्ड एज द थर्मोमीटर. अंडरस्टूड दिस मच. फिर थर्मोमीटर्स में आई हैव टोल्ड यू कि देयर आर 2 टाइप ऑफ थर्मोमीटर्स. फर्स्ट वन इज द क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड सेकंड वन इज द लैबोरेटरी थर्मोमीटर. एंड इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट ओनली वन टाइप ऑफ थर्मोमीटर ओनली. Means we have studied about the clinical thermometer only. I have shown you the structure. It consists of a stem, it consists of a capillary tube, it consists of mercury and it consists of king. ठीक है, तो उसमें and the clinical thermometer ranges from 35 to 42 degree. इतना मैंने बताया था. And one more thing I have told you, that is the normal body temperature of human is 37 degrees Celsius. Okay, till now we have studied. Now today we are going to continue the clinical thermometer only and later on we are going to study about the laboratory thermometer. Okay, now one activity is there for you. No need to do that, I am just going to explain it. Okay, so I have told you to measure the temperature, how we are measuring the temperature of the body using the clinical thermometer. Okay, but if we are taking the observation of 5 to 10 students using the clinical thermometer, then what are you going to notice? First of all, take the readings of the 4 to 5 members of your house of using the clinical thermometer. You will notice that there is a variation in temperature. Means हमारा जो normal body temperature है वो है 37 डिग्री सेल्सियस. बट when you will record the readings ना, आप लोगों को क्या मिलेगा कि हर बार जो आपकी readings है वो अलग है डिफरेंट पर्सन के लिए. फॉर एग्जाम्पल आपकी मम्मी की 36 है, आपकी पापा की 37.5 है, आपकी भाई की 38 है. सो नो नीड टू वरी, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है. सो डिफरेंट बॉडीज की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसकी वजह से उनका टेम्परेचर स्लाइटली वेरी कर सकता है. बट द टेम्परेचर विल रिमेन, मतलब 35 से ऊपर ही होगा, 42 से नीचे ही होगा. एवरेज मतलब हम लोगों ने 37 हमने क्यों लिया है, क्योंकि इतने सारे लोग मीन्स टोटली हमने जितने भी हमारी पॉपुलेशन है उसका एवरेज अगर हम लोग देखें ना कि टेम्परेचर कितना आता है, सो दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस. सो ऐसा कुछ नहीं है कि प्रॉपर 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आना चाहिए तभी हमारी बॉडी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर में कहलाएगी. इट इज नॉट लाइक दैट. सो for measuring the body temperature, a slight change in temperature may vary but it is not a cause of concern. Okay, one more thing, you cannot use the clinical thermometer for measuring the temperature of other object. आपको जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है खाली अपनी बॉडी का टेम्परेचर मापने के लिए ही यूज करना है. बिकॉज व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर यूजिंग द क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, इट मे ब्रेक्स. मैंने आपको आई थिंक लास्ट लेक्चर में भी ये चीज बताई थी कि आपका जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है खाली बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए ही यूज कीजिए. बिकॉज इफ यू आर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ अदर बॉडीज और अदर ऑब्जेक्ट्स, इट मे ब्रेक. और कांच का तो होता ही है वैसे तो, इट मे हर्ट यू. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द clinical thermometer. And one more thing, in the thermometer I have told, I have showed you ना, so इसी यहाँ पे ऐसे king जैसा कुछ था. So what is the function of the king? This is called as the king. So what is the function of the king? वो क्या करते हैं जब हम अपना टेम्परेचर मेजर करते हैं और उसको मुंह में से निकालते हैं, then हम लोग टेम्परेचर देखें, उसको ठीक से नोट डाउन करें, तब तक क्या होता है हमारा टेम्परेचर फॉल ना हो.
निकाला और उसका टेम्परेचर फॉल हो गया, देन हाउ वी आर एबल टू नो द टेम्परेचर? सो द फंक्शन ऑफ द किंग इज दैट ओनली इट डज नॉट लेट द टेम्परेचर फॉल डाउन। वो क्या करता है, टेम्परेचर को वहां पे स्टेडी करके रखता है ताकि हम लोग रीड आउट कर सके, एंड फिर वापस जीरो पे या फिर वापस नॉर्मल पे लाने के लिए क्या करता है, हमको जस्ट थर्मोमीटर शेक करना पड़ता है एंड द टेम्परेचर गोज टू नॉर्मल पोजीशन ओनली। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लिनिकल थर्मोमीटर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। सेम, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है, बट जो मार्किंग्स होती हैं उसमें डिफरेंस होता है। इन द क्लिनिकल थर्मोमीटर द मार्किंग्स आर फ्रॉम 35 to 40 and in clinical thermometer the range is -10 to 110 डिग्री सेल्सियस। सी, हमारे लेबोरेटरी थर्मोमीटर का रेंज क्या होता है, -10 डिग्री से स्टार्ट होता है एंड 110 डिग्री पे खत्म होता है। बिकॉज दिस टाइप ऑफ थर्मोमीटर आर यूज्ड इन लैब्स, जो हमारी केमिस्ट्री लैब्स होती है वहां पे ये जो है थर्मोमीटर पर्टिकुलरली यूज होता है फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट लिक्विड्स। अंडरस्टूड? ओके, नाउ व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर को कैसे हम लोग यूज करें। जैसे कि मैंने आपको क्लिनिकल थर्मोमीटर बताया था ना, व्हाट आर द सेफ्टी मेजर्स और व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड व्हाइल रीडिंग द थर्मोमीटर रीडिंग। सो यहाँ पे भी सेम ही होता है, द थर्मोमीटर शुड बी केप्ट लाइक दैट, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए आपका थर्मोमीटर, टिल्टेड भी नहीं, मतलब थोड़ा ऐसा भी नहीं थोड़ा वैसे भी नहीं, हमेशा एकदम स्ट्रेट मेजर करना चाहिए। एंड whenever you are putting, see I'll explain you one activity what you have to do, you have to take two different things, ठीक है। पहले एक कंटेनर में आपको नॉर्मल पानी लेना है एंड इन द सेकंड कंटेनर यू हैव टू टेक सम हॉट वाटर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल डिप द लेबोरेटरी थर्मोमीटर इन द फर्स्ट कंटेनर जिसमें कि आपका है नॉर्मल पानी। सो आफ्टर 1 to 2 मिनट्स जस्ट नोट द राइज इन मर्क्यूरी। आप लोग क्या देखोगे कि मर्क्यूरी धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ने लगा है। नोट द टेम्परेचर, ये ध्यान रखना लेबोरेटरी थर्मोमीटर को आपको पानी से निकालना नहीं है, जैसे ही आप पानी से निकाल दोगे उसका टेम्परेचर फॉल डाउन कर जाएगा। अंडरस्टूड? देयर इज नो किंक इन द लेबोरेटरी थर्मोमीटर, सो यू हैव टू टेक द रीडिंग व्हाइल द टेम्परेचर इज इन द कंटेनर ओनली और इन द लिक्विड ओनली। आपको ऐसे ही रखना है ये और ऐसे ही टेम्परेचर नोट डाउन करना है। आप थर्मोमीटर निकाल नहीं सकते। एज सून एज यू टेक द थर्मोमीटर आउट the temperature will going to fall very easily. So first note down the temperature in the normal water, then note the reading, then what you have to do, just take the thermometer out and put the thermometer, make sure कि उसका जो level हो वो 0 पे हो, ठीक है, या फिर -10 जो भी हो एकदम लो पे होना चाहिए। Then transfer the thermometer in the second container in which a little bit of hot water is there. So धीरे धीरे जैसे हीट मिलेगी तो वो टेम्परेचर राइज होगा एंड note the reading. Now just observe the difference between the two water, जिसमें ज्यादा गर्मी है या फिर जो पानी ज्यादा हॉट है उसमें क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा एंड नॉर्मल पानी का टेम्परेचर हॉट के कंपैरिजन में थोड़ा कम होगा। सो दिस इज हाउ यू टेक द रीडिंग ऑफ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। एंड वन मोर थिंग, इन द प्रीवियस टाइम्स, मतलब थोड़े टाइम पहले क्या होता था, मर्क्यूरी जो है ना, आप टोल्ड यू कैपिलरी ट्यूब में प्रेजेंट होती है, इट इज अ लिक्विड दैट इज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, सो दैट इज यूज्ड। हम लोग पहले मर्क्यूरी यूज करते थे, बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन द मर्क्यूरी इज टू टॉक्सिक, मतलब अगर हमारा थर्मोमीटर ब्रेक भी हो जाता है इट इज वेरी डिफिकल्ट और इट इज वेरी हार्मफुल टू डिस्पोज ऑफ द मर्क्यूरी। सो दैट इज व्हाई टुडे, अभी तो देखो डिजिटल थर्मोमीटर्स आ गए हैं, आपको जस्ट एक क्लिक करना होता है एंड डिजिटली उस पर नंबर्स आ जाता है कि आपका बॉडी टेम्परेचर कितना है या जो भी है। सो क्लिनिकल थर्मोमीटर्स में पहले मर्क्यूरी आती थी, नाउ द डिजिटल थर्मोमीटर इज देयर, उसमें तो क्या होता है डिजिटली आपका वैसे भी टेम्परेचर नोट डाउन करके मिल ही जाता है। सो इट इज वेरी हार्मफुल सब्सटेंस एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ द मर्क्यूरी आफ्टरवर्ड्स, मतलब पहले के टाइम में बहुत मुश्किल होता था मर्क्यूरी को डिस्पोज करना। सो इसके लिए हम लोगों ने उसको छोड़ के अब हम लोग डिजिटल थर्मोमीटर्स पे आ गए हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लिनिकल थर्मोमीटर, उसकी रेंज क्या होती है एंड हाउ टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द क्लिनिकल थर्मोमीटर। अंडरस्टूड? Okay students, so now we are going to discuss another topic. Let's move on further with the chapter. So now we are going to discuss about the next topic, that is transfer of heat. Means heat एक जगह से या फिर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक कैसे ट्रांसफर हो रही है। Now we are going to study about that. Okay. Before starting the topic, I am going to give you some general example that you must have noticed in your house. अब मैं आपको example देने होंगे। See,
व्हेन योर मॉम इज कुकिंग द फूड, आप लोग क्या करते हैं, चलो फॉर एग्जांपल चाय बनाने का एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत इजी होता है। उसमें क्या करना होता है, आपको तपेली लो, चाय पत्ती चीनी दूध वगैरह जो भी डालो और आप उसको फ्लेम ऑन करके, गैस की फ्लेम ऑन करके चढ़ा देते हो। धीरे धीरे पहले आपकी चाय की तपेली ठंडी होती है, फिर ठीक है धीरे धीरे उसको हीट मिलने लगती है एंड फिर उसमें से क्या करती है, वो हीट है जो जाके उन सब्सटेंस पे लगती है जो कि आपने अंदर डाले, दूध चीनी चाय पत्ती, उनको जाके लगती है, वो उबलना स्टार्ट करती है। बट धीरे धीरे आप लोग क्या नोटिस करोगे, उस पर्टिकुलर वेसल से उसके फ्राइंग पैन पे भी मतलब उसके हैंडल पे भी जाने लगती है थोड़ी बहुत हीट। सो हाउ द प्रोसेस हैपनिंग मींस पर्टिकुलर प्रोसेस क्या है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक हीट जा कैसे रही है। सो द हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अनदर बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। कौन से प्रोसेस से जा रही है, कंडक्शन। So the conduction is the process by which the heat is being transferred from one object or one body to the another body. Okay. Now I am going to show you an activity, or I am going to explain you an activity by which you can understand the concept of conduction very better. Okay. So what you have to do, you have to make one stand, brick है ना, दो ईंटें एक के ऊपर एक रख लो, उसके बीच में फिक्स एन आयरन रॉड, एक आयरन की जो रॉड होगी, दिस इज द आयरन रॉड, उसको फिक्स कर लो एंड फिक्स सम वैक्स, जो क्या वैक्स होती है ना आपकी मोम जिसको बोलते हैं, आप लोग क्या करो उसको यहाँ पे फिक्स कर दो, इक्वल डिस्टेंस पे फिक्स करना है आप लोग, यहाँ पे उसको फिक्स कर दो, ये जो मेरी गोल गोल चीज है ना, दैट इज द वैक्स एंड एट द एंड ऑफ द आयरन रॉड कीप अ फ्लेम, कैंडल हो जाएगा या फिर कुछ भी हो जाओ जो गर्म जो फ्लेम प्रोड्यूस कर सके उसको रखो यहाँ पे। देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लाइट द कैंडल। ओके, सो धीरे धीरे व्हाट यू विल नोटिस, एज सून एज यू लाइट द कैंडल, इसकी जो हीट की जो फ्लेम है वो यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है, धीरे 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 वो यहाँ पे मींस एंड पोर्शन से वो इस साइड ट्रैवल करना शुरू करेगी। सो व्हाट विल हैपन, द हीट दैट इज बीइंग हियर स्टार्टेड, द हीट विल स्टार्ट ट्रांसफरिंग फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड। फिर क्या होगा, जैसे हीट इतने पोर्शन में थी, ये हीट हुआ, फिर हीट धीरे धीरे ट्रांसफर करना शुरू करेगी। सो यहाँ से लेके यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, तो व्हाट विल हैपन, जो हमारी बैक्स जो हमने मोम लगाया था वो धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे जो था देखो वो नीचे गिर रहा है, फिर हीट इस पोर्शन पे जाएगी तो ये वाला वैक्स है वो भी पिघलना शुरू हो जाएगा, फिर नेक्स्ट पे जाएगी तो ये भी पिघलना शुरू हो जाएगा। सो जैसे ही हमारा वैक्स इक्वल डिस्टेंस पे जो हमने वैक्स के पीसेस रखे हुए, एज सून एट इट स्टार्ट्स getting melted, then we get to know that the heat is transferring from this end of the iron rod to that end. So हमने खाली हीट इधर दी है, हमने ऐसा नहीं है कि कैंडल पूरे आयरन रॉड पे घुमाई है, इट इज नॉट लाइक दैट, हमने we have kept the candle at the same position only and the heat is only transferring from one end of the iron rod to the other end. So in that process the wax present at the equal distance will start melting and this is how will get to know that the heat is transferring from one body or one end of the body to the another. So this is how the conduction is taking place. मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट कैसे ट्रांसफर होती है वो हम लोगों ने by the process of conduction देखा। And two type of things are there, obviously you know it, conductors and insulators क्या होते हैं। So the object that allow the heat to easily pass through them are called as the conductors. For example, iron is there, copper is there, ठीक है, and the object that does not allow heat to pass through them are called as the insulators. For example, wood is there, plastic is there. So mainly handles, जितने भी हम लोग के बर्तन होते हैं उनके जो हैंडल्स होते हैं वो हमारे इंसुलेटर्स से बने होते हैं। बिकॉज अगर हम हैंडल्स भी कंडक्टर्स के बना लेंगे तो क्या होगा, वो फ्राइंग पैन गर्म होगा और उसकी हीट हमारे हैंडल्स में आ जाएगी और जब हम लोग हैंडल पकड़ेंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा। सो दैट इज वाई the handles of the utensils are made up of from the insulators so that when we hold the handles now it doesn't affect us और हम लोगों को गर्म ना लगे। So this is all about the conduction. In the process मैंने बताया था कि conduction होता है कि हम repeating it once again. So the process of transferring heat from one body to the another, that is called as the conduction, and the material that allow the heat to pass through them are called as the conductors and that does not allow, that are called as the insulators. So this is in this lecture this is all about it, and if you are having any query, we'll meet in the online section, you can ask from there. Okay, so till then, thank you so much.